Launched in July 2024, this plan packs in some solid benefits like infinite sum insured, infinite loyalty bonus, and a worldwide cover. But the question is this plan still relevant in 2026? To know this exactly in this video, beyond just talking about innovative product features that other YouTubers, agents, call centers keep talking about, we will go several layers deeper. Using my 20 years of experience in ILM's deep research, I'll break down the fine print, the real world claim performance, and the hard data behind this plan. So by the end, you won't just know what the policy offers, you'll also know everything important in the fine print, their service and claims performance for you to make an informed decision. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. Now here's what we will be covering in this video. 1. Unique features of this plan, ICICI Elevate. 2. A quick roll call of all the core benefits that you should know. 3. And most importantly, we will cover the claims and customer service performance of ICICI Lombard as a company. And then you will understand how this product is priced for a specific use case. And yes, while we will try to keep this simple, but at any point in time, if you feel confused with the information, you can always book a free call with India's top 5% insurance experts on Beshak.org. Mind you, these are not freshers in a call center, but real experts with up to 20 years of experience in the space. They will not only guide you, but will also help you in the entire journey from purchase to claims. Click on the link in the description and book your free consultation today. Okay, so quickly looking at the USPs of this plan. Now, this plan tries to offer you a lot of things which are infinite. So let me first pick those. The first one is infinite sum insured. This plan basically as a sum insured option gives you infinite cover. तो मतलब जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का कवर है, वैसे you get an option to choose infinite option. मतलब कितना भी कवर आपको, कितना भी क्लेम आपको आएगा, आप इसमें क्लेम कर सकते हो अगर आपने ये सम इंश्योर्ड ऑप्शन चूज किया. मैंने क्विक चेक किया था कि इसका प्रीमियम कितना डिफरेंट है. तो 10 लाख का जो सम इंश्योर्ड है उसका जो प्रीमियम था फॉर 2A + 1C मतलब 2 एडल्ट और एक चिल्ड्रन के लिए, उसका प्रीमियम अराउंड 13-14 हजार रुपए था. इसका प्रीमियम जो है अराउंड 37,000 है. मतलब आप 3 गुना ज्यादा प्रीमियम पे करके यू कैन एक्चुअली गेट एन अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड कवर. नाउ द नेक्स्ट यूएसपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट केयर. ये एक एड ऑन है जिससे बेसिकली आप ये कर सकते हो कि अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, 20 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, बट आपके लाइफ टाइम में आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि आप कितना भी क्लेम कर सकते हो, कि आपको बेसिकली कोई भी सम इंश्योर्ड की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो आप ये एड ऑन ले सकते हो. इसमें बेसिकली आप एक टाइम, आपके पूरे लाइफ टाइम में आप कितना भी क्लेम कर सकते हो, आपको सम इंश्योर्ड का लिमिटेशन नहीं होगा. ये यूजुअली यूजफुल है बहुत ज्यादा, बिकॉज हमको हमेशा ये डर रहता है कि टिपिकली एक ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन तो आ सकता है हमारी पूरी फैमिली में जहां पे सम इंश्योर्ड कम गिर सकता है. तो ये एक एड ऑन आप ले सकते हो. इसका टिपिकल प्रीमियम जो हम सेम यूज केस की बात कर रहे हैं उसका कुछ 1400 रुपया प्रीमियम आता है. दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल. ऑब्वियसली ये वाला जो फीचर है, आप अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले रहे हो तो आपको लेने की जरूरत नहीं. द थर्ड यूएसपी इन दिस प्लान इज कॉल्ड द पावर बूस्टर, ऑल्सो कैन बी कॉल्ड द सुपर लॉयल्टी बोनस. नाउ इसमें क्या होता है कि यूजुअली अगर इस पॉलिसी में आप ये एड ऑन जो है वो नहीं लेते हो, तो आपको बेसिकली हर साल क्लेम करो या ना करो, यू विल गेट ए 20% एडिशनल सम इंश्योर्ड इन योर पॉलिसी अप टू 100%. बट अगर आप ये एड ऑन लेते हो तो बेसिकली आपका सम इंश्योर्ड 100% से इंक्रीज होगा एवरी ईयर. यू विल गेट अ बोनस ऑफ 100% एवरी ईयर एंड देयर इज नो लिमिट टू द अक्यूमुलेशन. मतलब आपने अगर 20 लाख का कवर लिया है और आप 10 साल क्लेम नहीं करो तो हर साल आपका 20 लाख से कवर बढ़ेगा. दैट इज द फीचर. इसका प्रीमियम भी बहुत सिंपल, मतलब सस्ता है. मैंने देखा था 2095 इसका प्रीमियम आ रहा है फॉर द सेम यूज केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वर्ल्ड वाइड कवर. आजकल बहुत सारे लोग ये बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं इसको कि अगर ऐसी कोई डिजीज हो गई जहां पे मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रीट करना पड़ा तो उसके लिए क्या. तो ये वर्ल्ड वाइड कवर सॉल्व करता है. अगेन ये एक एड ऑन है, आपको एडिशनल प्रीमियम पे करके आपको ये लेना पड़ेगा. इसमें बेसिकली ऐसा है कि बोथ इमरजेंसी और प्लान केसेस में आपको कवर मिल सकता है. इसमें एक वेटिंग पीरियड है कि आप जैसे पॉलिसी खरीदोगे आप यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर द फर्स्ट 2 years. यू कैन नॉट बेसिकली क्लेम फ्रॉम द ग्लोबल एड ऑन वॉट एवर इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड कवर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये इंटरेस्टिंग चीज है कि सेपरेट कवर है. मतलब आप जो कवर लोगे, एक आपका कवर है 20 लाख 50 लाख जो भी आपने कवर लिया है, आपका जो वर्ल्ड वाइड का कवर होगा वो सेपरेट कवर होगा. इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर मेन कवर. तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो समझना बहुत जरूरी है. पहला जो है कि ये सिर्फ कैशलेस बेसिस में अवेलेबल है. आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो. आपको बेसिकली नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है और सिर्फ कैशलेस ट्रीटमेंट ही आपको मिलेगा. मतलब कोई भी हॉस्पिटल में आप जाके ट्रीटमेंट ले लोगे और फिर रीइंबर्समेंट नहीं ले पाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना. सेकंड जो है कि इसमें मैंने जैसे बताया कि प्लान ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है. तो अगर आप कोई जहां पे ट्रैवल कर रहे थे और आपको जरूरत पड़ गई हॉस्पिटलाइजेशन की, तो उस केस में आपका जो ट्रिप है
वो लेस देन 45 डेज होना चाहिए, तभी आपको इसमें कवरेज मिलेगी, वरना कवरेज नहीं मिलेगी। और टोटल जो आपकी साल की जो ट्रिप्स है, टोटल जो आप पूरे साल में जो ट्रैवल करेंगे वो 90 डेज के अंदर होना चाहिए, तो ही वो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए कोई एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, ऐसे ही मत खरीदिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको ये अगर थोड़ा नुआंस है और समझना है तो अच्छा है कि आप एक्सपर्ट से बात करके फिर डिसाइड कीजिए। तो ये हो गए बेसिकली सारे यूएसपीस। नाउ वी विल मूव टू द क्विक रोल कॉल ऑफ ऑल द कोर बेनिफिट्स इन दिस प्लान। The first core benefit that everybody needs to understand for every plan is basically the room rent limit or the room category limit. तो ये जो प्लान है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और ये प्लीज सुनिए बराबर से, कि आपको इस प्लान में बाय डिफॉल्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। आपको एनी रूम रेंट लिमिट जो होती है या नो रूम रेंट लिमिट जो बोला जाता है या एनी रूम जो बोला जाता है वो नहीं मिलता है। आपको एक एड ऑन लेना पड़ता है एनी रूम में जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर आपको वो जो रूम चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, मतलब जो प्राइवेट रूम है, सिंगल रूम है, अगर वो नहीं मिली और आपको हायर रूम लेनी पड़ी तो डिडक्शंस हो सकते हैं। इसीलिए यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि आप एनी रूम वाला ही पॉलिसी लीजिए, नो रूम रेंट लिमिट का भी पॉलिसी लीजिए। कोविड के टाइम पे जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे तभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में आई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फीचर। नेक्स्ट जो है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें 90 डेज और 180 डेज कवर है। 90 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, 180 डेज आफ्टर योर डिस्चार्ज कवर होता है। बहुत अच्छा है, इतना इनफ होता है। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट्स। डे केयर ट्रीटमेंट में बेसिकली सारी चीजें कवर्ड है, ऑल things are covered, there are no list involved, so there is no problem in that, good to go. डोमिसलरी ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि डोमिसलरी ट्रीटमेंट कवर्ड तो है, बट देयर आर 17 इलनेसेस लाइक एस्मा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। इसके केस में आप होम ट्रीटमेंट, डोमिसलरी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। 17 इलनेस है, अगर आपको समझना है तो एक्सपर्ट से बात कीजिए, या हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई लिमिट नहीं है, ऑर्गन डोनर में भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये यूजुअली जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें से एक है जहां पे कोई लिमिट्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ एक डोमिसलरी ट्रीटमेंट में आपको एक एक्सक्लूजन दिख रहा है, वरना अदरवाइज आप देखेंगे तो सब अच्छा है। एक और एड ऑन ले लीजिए आप रूम रेंट के लिए, तो अगर फिर वो लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, क्विकली अभी हम एक गुड टू हैव बेनिफिट्स भी ले लेते हैं। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट वाला है उसका नाम है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स कवर इसमें मिलता है, आपको एक एड ऑन लेना पड़ेगा, उसके एवज में आपको ये बेसिकली मिलेगा। उसमें 68 लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम्स कवर होगी। तो टिपिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसमें कंज्यूमेबल्स, जो नॉन मेडिकल आइटम्स होती है, जो हॉस्पिटल चार्ज करती है, वो पेएबल नहीं होता है। इसमें आपको एक एड ऑन लेने से ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। नाउ रिस्टोरेशन बेनिफिट इनबिल्ट फीचर है। इसमें बेसिकली आपको अनलिमिटेड टाइम, साल में अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आपका सम इंश्योर्ड रिस्टोर होते रहेगा। ये सारे इलनेसेस के लिए एप्लीकेबल है और ट्रिगर करता है इवन फॉर पार्शियल एग्जॉशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो समझना जरूरी है कि ये सेकंड क्लेम से ट्रिगर करता है। बहुत सारी पॉलिसीज अभी आई है इसमें फर्स्ट क्लेम से भी ट्रिगर करता है, इसमें सेकंड क्लेम से ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है जो यंग कपल्स, यंग फैमिली में कोई भी अगर है उनके लिए बहुत यूजफुल है इसका मैटरनिटी बेनिफिट। आजकल बहुत डिमांड बढ़ गई है इसकी। ये भी एक एड ऑन है। ये एड ऑन अगर आप लेते हो तो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 1 लाख आपको ये कवर मिल जाएगा। ये आप ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि 2 साल का वेटिंग पीरियड है। आप थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देंगे तो उसको वो लोग 1 साल कर सकते हैं। तो ये थे सारे गुड टू हैव बेनिफिट्स और जो भी कोर बेनिफिट्स है जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सारे जो फाइन प्रिंट थे उसके जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मैं जाने वाला था वेटिंग पीरियड्स में, बट द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलिसी है इसमें एक क्लॉज है कॉल्ड मटीरियल चेंज क्लॉज। मटीरियल चेंज क्लॉज का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बोल रही है कि अगर आपने पॉलिसी खरीद ली और पॉलिसी खरीदने के बाद आपका कोई ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है या आपकी कोई मेडिकल चेंज हिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट्स है कि वो आपके टर्म्स चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका प्रीमियम चेंज कर सकते हैं या फिर आपका पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है या कोई लिमिट्स डाल सकते हैं पॉलिसी में। ये बहुत ही सीरियस चीज है और ये एक्चुअली आईआरडीए की जो लॉज है, रेगुलेशन है, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो इस पर हमने एक पोस्ट किया था, उस पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक पब्लिक क्लैरिफिकेशन दिया है जो हम ये स्क्रीन पे दिखा देंगे, बोलते हुए कि बेसिकली हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने एक दूसरे क्लॉज के साथ इसको कनेक्ट करके बताया कि हम नहीं करेंगे। तो ये जो स्क्रीनशॉट, अगर आप ये पॉलिसी बाय चांस खरीदने वाले हैं तो ये जो स्क्रीनशॉट है तो आपके पास रखिए। हमारे या तो हमारे कोई भी टीम से, रिसर्च टीम से आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये पॉलिसी अगर आप खरीद रहे तो प्लीज समझिए इसको। नेक्स्ट जो चीजें है वो है वेटिंग पीरियड्स। इसमें स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड्स है। 30 डेज वेटिंग पीरियड फॉर ऑल सिकनेस रिलेटेड क्लेम्स इन द फर्स्ट ईयर, 3 ईयर वेटिंग पीरियड फॉर पीडी वेटिंग पीरियड्स। इसमें कोई मॉडिफिकेशंस है जो क्विकली समझना जरूरी है। तो पीडी वेटिंग पीरियड में आपको जो मॉडिफिकेशन अवेलेबल है वो ये है कि आप 12 से 24 महीने में आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके वेटिंग पीरियड्स को। तो अगर आपने 3 ईयर का वेटिंग पीरियड जो स्टैंडर्ड है वो आपको नहीं चाहिए और अगर आप उसको कम करना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि आपको जल्दी कवर मिल जाए आपके एग्जिस्टिंग डिजीजेज में, तो 12 मंथ्स आप करवा सकते हैं, 24 मंथ्स करवा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो यहाँ पे हमने निकाला है तो 2 एडल्ट्स एंड 1 किड का 30 ईयर ओल्ड का इज 1000 रुपीज टू रिड्यूस इट टू 2 years and
1300 रुपीज टू रिड्यूस इट टू 1 ईयर। बहुत ही कम है, प्रीमियम तो अच्छा है। अगर आपको कोई डिजीज है तो आप ये चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अंडरराइटिंग लेड होता है, ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी डिजीज को आपका वेटिंग पीरियड कम कर देगी। तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सकती है, बट प्रीमियम बहुत कम है। इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग, इसमें और एक मॉडिफिकेशन अवेलेबल है पीईडी वेटिंग पीरियड्स में। तो बेसिकली कोई एक लिस्टेड इलनेसेस है, अराउंड 6 इलनेसेस है, विच इज बेसिकली एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी। और अगर एंजियोप्लास्टी हुई है किसी भी आपके फैमिली मेंबर को 1 साल या उसके पहले की, तो उसका भी वेटिंग पीरियड आप 30 डेज करवा सकते हैं, मतलब 31st डे से आपको कवर मिल सकता है। ये भी एडिशनल प्रीमियम पे आपको अवेलेबल है। तो वेटिंग पीरियड्स आप कम कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया फीचर है फॉर एनीबडी हु हैज अ डिजीज, something which is a chronic condition and they want to reduce their waiting periods. So this is something that you can consider. Specified disease waiting period जो होता है उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि एक लिस्ट ऑफ इलनेसेस होती है। फॉर दोज लिस्टेड इलनेसेस देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। आफ्टर 24 मंथ्स वो कवर होती है। स्पेसिफिकली नॉन पीडी इलनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको एक्जिस्टिंग डिजीज है तो जो मैंने पहले बताया 3 इयर्स वही वेटिंग पीरियड लगता है। एडिशनली इसमें एक 90 डेज वेटिंग पीरियड है फॉर बीपी, डायबिटीज और कार्डियक। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि नॉन पीडी के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप पॉलिसी खरीदते हो पहली बार तो फर्स्ट 90 डेज में आप बीपी, डायबिटीज और कार्डियक के क्लेम्स नहीं कर पाओगे। जो मैंने 30 डेज जो बताया था उसकी जगह पे इसको 90 डेज एप्लीकेबल है। ये स्पेसिफाइड डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है इसमें भी एक मॉडिफिकेशन अवेलेबल है कि आप 24 मंथ्स को 12 मंथ्स कर सकते हो। इसका जो प्रीमियम है एडिशनल जो हमने देखा है यहाँ पे 4189, विच इज अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू लुक एट इट। थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है बट ठीक है, मतलब इट्स अ कॉल दैट यू नीड टू टेक। मूविंग ऑन टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में दो चीजें हम हमेशा कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, कोई डिस्क्लोजर्स इंश्योरेंस कंपनीज करते नहीं है, कोई आईडी इसमें रिपोर्ट बनाता नहीं है। तो वी डू एवरीथिंग बेस्ड ऑन आवर ओन ऑडिट्स। फॉर टोल फ्री वी हैव रैंक्ड देम एज एवरेज, मतलब जितने सारे इंश्योरेंस कंपनीज बुरे उतना ही बुरा है या अच्छे है। दूसरा जो है रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर या एक्स जिसको आजकल बुलाया जाता है, उसमें इनका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। तो बेसिकली आप ट्विटर चाहे यूज करें या ना करें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ हाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर लुकिंग एट कस्टमर सर्विस इन जनरल। तो ट्विटर इज क्वाइट अ लार्ज प्लेटफॉर्म और उस पर इनकी जो सर्विस है या रिस्पॉन्सेस है वो स्लो है। नेक्स्ट इज क्लेम्स एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, तो आप जो भी कर रहे थे वो करना रुका दीजिए उस चीज को और ये चीज को ध्यान से समझिए। इसमें हम 4 वैल्यूज डिस्कस करेंगे और एक वैल्यू जो है वो काफी अलार्मिंग है, तो वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी को जितने भी क्लेम्स मिले उस क्लेम्स में वो फर्स्ट 30 डेज में कितने क्लेम्स सेटल करते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी एफिशिएंट है इन सेटलिंग क्लेम्स। इनके केस में 99.94% है, विच इज अ वेरी वेरी परफेक्ट स्कोर। 0.06% तो चलो कोई भी कारण से हो ही सकता है, तो कोई इशू नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। देयर स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट इज क्लेम कंप्लेंट्स। क्लेम कंप्लेंट्स में इनका जो रेशियो है इज 0.14%। नाउ दिस इज टिपिकली कंपेयर टू अदर कंपनीज दैट वी हैव सीन क्वाइट गुड, मतलब काफी कंपैरिजन में दे वुड रैंक एट क्वाइट अ गुड नंबर ऑन दिस। The next is incurred claim ratio. Incurred claim ratio थोड़ा बुरा लगा मुझे। 85.53% is the ratio. Typically we recommend something between 60 and 80%. इस बेसिकली रेशियो के हिसाब से you come to know that एक इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रॉफिट करता है। इंकर्ड क्लेम रेशियो ऐसा एक रेशियो है जिसमें आपको पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया कलेक्ट कर रही है तो क्लेम्स में कितना पे कर रही है। तो 60 to 80 टिपिकली पे करती है, तो इंश्योरेंस कंपनी ना ज्यादा लॉस कर रही है ना ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। तो इसमें 85.53% तो स्लाइटली ज्यादा है, हमारा जो थंब रूल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो है वो है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। नाउ ये जो है यहाँ पे मैं 2-3 बार रिसर्च टीम से बात करके चेक करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। 14.11%। 14.11% बहुत ज्यादा है फॉर अ कंपनी विच इज 20 ईयर्स 25 ईयर्स ओल्ड। आप कह क्या रहे हैं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपको साल के 100 क्लेम आए, 100 में से 14 आपने रिजेक्ट कर दिए। काफी बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। मैंने दूसरे कंपनीज के भी रिव्यूज किए हैं जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। कुछ जो कंपनीज है उनका रेशियो 3-4-5% में, 14% काफी हाई है। तो ये एक स्पेसिफिक रेड फ्लैग है। अगर आप ये प्लान खरीद रहे हैं तो जो भी एक्सपर्ट से खरीद रहे हैं उसके साथ इसके बारे में डिस्कशन डेफिनेटली करना और फिर ही प्लान खरीद। मूविंग ऑन टू प्रीमियम्स। प्रीमियम क्या है इसका, हम टिपिकल जो एक स्टैंडर्ड मिस्टर कुमार को लेते हैं जो खुद 30 ईयर ओल्ड है, उनकी वाइफ है जो भी 30 ईयर ओल्ड है, 1 साल का बच्चा है उनका, बॉम्बे में रहते हैं वो, तो उनका प्रीमियम क्या आएगा इज टिपिकली वी सी फॉर 10 लाख सम इंश्योर्ड 13,964। काफी सस्ता है मैंने जो भी बाकी रिव्यूज किए उसके हिसाब से। बट यही है कि इसमें आपको बहुत सारे एड ऑन्स ऐड करने हैं, उसके बाद ये प्लान बनता है। वो ठीक है जिसके लिए एप्लीकेबल वो ऐड करेगा नहीं करेगा, बट इफ यू लुक एट इट एट अ प्लेन लेवल 13,964 इज क्वाइट an affordable premium that ICICI Lombard is offering so many interesting things with. So that is basically the end of the review. आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि यूएसपीज क्या है प्लान की, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट क्या है प्लान का, कोर बेनिफिट्स क्या है, प्रीमियम में हमने समझ लिया है।
इसके बाद अगर आप ये प्लान लेने की सोच रहे थे और आपने को किसी आपको कोई बेच रहा था, किसी ने आपको सजेस्ट किया था ये प्लान और फिर भी आप कंफ्यूज्ड है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि यू कैन गेट अ फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वी डोंट हैव एक्सपर्ट्स व्हिच आर बेसिकली कॉल सेंटर पीपल. दीस आर बेसिकली पीपल विद हैव मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड एन एवरेज ऑफ अराउंड 9 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपको प्लान समझाएगी भी और आपको क्लेम्स के टाइम पे भी हेल्प करेंगे. तो एक नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं ये वीडियो पे, आप वो नंबर पे बेसिकली व्हाट्सएप से हाई भेजिए, हमारी टीम में से आपको कोई कनेक्ट करेगा और फिर आपको जो भी अच्छा एक्सपर्ट अवेलेबल है उसके साथ आपको बेसिकली बात करवा देगा, आपका कंसल्टेशन करवा देगा.